Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So let's start today's lecture. In the previous lecture, we saw what is an operating system and one type of operating system, which is batch operating system. The main disadvantage in this operating system was that CPU was idle for a very long amount of time, which leads to the less throughput of the system. So let's move to the next operating system, which is multi-programming operating system. In this operating system, the main advantage is that we can allocate the CPU to another process when the CPU is idle. So let's move with the definition. When job is leaving to perform IO operation, then CPU is idle. We know that in this time we will assign another job to the CPU. Now how will this happen? Let's see. Let's suppose this job 1 is moving to the CPU. Job 1 is moving to the CPU. It is performing some task and then it will go for some IO operation. Job 1 will go some IO operation and the CPU is idle in this time. So what we will do, we will pick up the job 2 and allocate the CPU to job 2. Now the CPU is not idle and job 2 is executing its task and job 1 is doing some IO job. So the main advantage in this type of operating system is it will lead to increased CPU utilization. How CPU utilization will be increased? We saw that CPU is not idle. CPU is not idle. It is executing some type of jobs at every time. If CPU is not idle, then the throughput of the system will obviously increase throughput of the system. CPU is not idle, so throughput of the system increased. Now let's move to next type of operating system, which is multitasking operating system. In this type of operating system, many students confuse with the multitasking and multi-programming operating system, but there is a slight difference. Let me tell you. Let's pick job 1 and we schedule this to the CPU. Now job 1 is executing in the CPU. If it goes for IO, then CPU is idle and we can allocate job 2 to the CPU. In these terms, this type of operating system is behaving exactly like the multi-programming operating system. Then what is the difference between these two operating systems? The main difference lies here that if the job 1 is executing in CPU only, if it is executing in CPU only, job 1 is executing in CPU only and not leaving for IO. Then suppose job 1 has execution time of 1 hour. Then other jobs which are waiting in the memory for execution will wait for a very long amount of time and we don't want that. Then what we will do, we will remove the job 1 from the CPU and bring it back into the memory and we will schedule next job to the CPU. Now job 2 will execute for some amount of time and we will bring out this job to the memory again and job 3 will be scheduled to the CPU and this will go on for all the remaining jobs. Now what is the advantage of this? In the previous operating system, we saw that job is leaving the CPU on its own terms. Job आपकी अपने कंडीशंस के ऊपर ही CPU से बाहर निकल रही थी. हम फोर्सफुली उसको CPU से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, एग्जेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे CPU को. एंड जो रिमेनिंग जॉब्स थी वो एक लंबे टाइम के लिए वेट कर रही थी अपना टर्न आने का, विच इज़ अनफेयर टू ऑल द जॉब्स. सो व्हाट वी गोना डू, वी forcefully exempted the process from the CPU and CPU को हमने अदर प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करने का टाइम दिया. अब इससे क्या होगा कि हर जॉब को एक फेयर टाइम मिलेगा टू एग्जीक्यूट इट्स टास्क. लेट्स मी गिव एन एग्जांपल.
सपोज देयर इज़ अ क्लासरूम, इट इज़ अ क्लासरूम, इसके अंदर 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट्स हैं एंड देयर इज़ अ टीचर, ये टीचर आपको पढ़ा रहा है। अब मान के चले मैं बोलूँ कि सबसे पहले ये रोल नंबर 1 आएगा, इसको मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये इसके बाद ये क्लासरूम से बाहर चला जाएगा, उसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है वो क्लासरूम के अंदर आएगा, फिर मैं इसको पढ़ाऊँगा 1 घंटा, उसके बाद ये बाहर चला जाएगा क्लासरूम से, और ऐसा करते करते हम लास्ट स्टूडेंट 100वें स्टूडेंट को 1 घंटा पढ़ाएंगे और उसके बाद ये भी क्लास से बाहर चला जाएगा। अब मान के चलिए एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए मेरे को 1 घंटा लग रहा है। अब जो सबसे पहला रोल नंबर है इसको सबसे पहले चांस मिला, इसने 1 घंटा लर्न किया, उसके बाद ये क्लासरूम से बाहर गया, और ऐसा करते करते जो 100वां स्टूडेंट था इसने कितना लंबा टाइम वेट किया अपना टर्न आने का। अब हम चाहते हैं कि ये डिसएडवांटेज रिमूव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या करेंगे, हम सेम क्लासरूम है जिसके अंदर 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट हैं और एक टीचर है और एक बोर्ड है जिसके ऊपर टीचर पढ़ाएगा। अब हमने बोला कि जो हर स्टूडेंट है हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे टू लर्न अ टॉपिक। अब पहला रोल नंबर क्लासरूम के अंदर आया, टीचर ने इसको 5 मिनट के लिए पढ़ाया और उसके बाद ये वापस क्लासरूम में चला गया। उसके बाद रोल नंबर 2 आया, रोल नंबर 2 ने 5 मिनट लर्न किया, उसके बाद ये वापस चला गया क्लासरूम, और ऐसा करते करते लास्ट स्टूडेंट नंबर 100 ये आया, इसने 5 मिनट के लिए लर्न किया और ये वापस मेमोरी के अंदर चला गया। तो हमने देखा ऐसा करने से जो वेटिंग टाइम है हर एक स्टूडेंट का वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो गया, हर स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिला टू लर्न फ्रॉम द टीचर। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेज देख लेते हैं एक बार, जॉब्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ टाइम शेयरिंग मोड। यही हमने अभी देखा है कि जितनी भी जॉब्स थी, जितने भी स्टूडेंट थे, उनको एक टाइम मिला जिसके अंदर वो लर्न करके वापस क्लासरूम के अंदर आ रहे थे। एवरी जॉब विल गेट अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट, हर एक स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिला टू लर्न अ न्यू टॉपिक। यही इसकी मेन एडवांटेज है ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी जॉब विल एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एवरी जॉब विल गेट अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट इन द CPU. Now let's move forward to the next type of operating system which is multiprocessor operating system. अब मल्टी प्रोसेसर से ही आपको पता लगेगा कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेसर्स एंड दे आर कनेक्टेड टू अ मेमोरी। अब ये देखिए, ये CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है, एंड देयर could be any number of CPUs and they are related to a memory. अब जैसे ही हमें पता है कि आपका जो जितना भी बेसिक वर्क होता है वो सारा आपका प्रोसेसर ही करता है, तो जैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इंक्रीज होंगे तो हमें पता है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपका फॉल्ट टॉलरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। थ्रूपुट कैसे इंक्रीज हुआ, हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल processors which are executing the task. Next advantage, higher reliability. Reliability means the number of fault tolerance is high. Fault tolerance high कैसे होगा, मान के चलिए आपके पास कुछ जॉब्स थी जो एग्जीक्यूट करी थी CPU के अंदर। अब मान के चलिए कि ये CPU 3 है, ये डाउन हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम। अब CPU 3 ऑन नहीं है तो CPU 2 और CPU 1 बचे। आपका सिस्टम कम्प्लीटली शट डाउन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही प्रोसेसर शट डाउन हुआ है। रिमेनिंग CPU रिमेनिंग प्रोसेसर आपके अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो आपका फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम इंक्रीज हो गया। मान के चलिए लेट्स सपोज इन द वर्स्ट केस CPU 2 भी डाउन हो गया। अब क्या आपका सिस्टम कम्प्लीटली शट डाउन होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास एक और प्रोसेसर अभी भी रनिंग कंडीशन के अंदर है, तो ये काम करता रहेगा। So these are the main advantage of this operating system. Let's move forward to the next operating system which is real time operating system. नाम से ही पता लग रहा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिस्टम विच आर टाइम बाउंडेड।
टाइम बाउंडेड मीन्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम कोई एक पर्टिकुलर टास्क करके देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ चलिए आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फर्स्ट टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलता है कि अगर माइनर डिले होता है तो आई कैन एक्सेप्ट इट। एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम। अब माइनर डिले का मतलब क्या है, मान के चलिए देर आर टू फ्रेंड्स, फ्रेंड नंबर 1 एंड फ्रेंड नंबर 2। फ्रेंड नंबर 1 ने फ्रेंड नंबर 2 को कुछ पैसे सेंड किए। अब फ्रेंड 1 के अकाउंट से तो पैसे चले गए, लेकिन फ्रेंड 2 के अकाउंट में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो आप कितना डिले एक्सेप्ट कर सकते हैं? मान के चलिए 2 मिनट तक नहीं आए, 3 मिनट तक नहीं आए, लेकिन तीसरी चौथी मिनट के अंदर आपके पास अमाउंट जो है वो आ गया, तो इतना डिले आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ रियल हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या बोलता है कि माइनर डिले विल नॉट बी एक्सेप्टेड। माइनर डिले विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एग्जाम्पल क्या है? मिसाइल एंड सैटेलाइट सिस्टम। मान के चलिए आपने एक सैटेलाइट है और वो आपने अर्थ से लॉन्च किया। अब वी नो दैट देयर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ अ सैटेलाइट सिस्टम। एक ऑर्बिट के जाने के बाद आपका ये फर्स्ट पार्ट डिटैच होगा 4, एंड एक सर्टेन डिस्टेंस के जाने के बाद आपका ये सेकंड पार्ट डिटैच होगा, और उसके बाद ऑर्बिट में आपका ये ऊपर वाला पार्ट रिवॉल्व करता है, ये हमें पता है। अब मान के चलिए ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है, और हमें पता है कि 5 सेकंड के अंदर हमें इसको डिटैच करना है। फ्यूल ख़त्म हुआ, लेकिन ये डिटैच हुआ आपका 10 सेकंड के बाद। अब 10 सेकंड तक आपका मिसाइल सिस्टम था ये वर्किंग कंडीशन में नहीं था, फ्यूल ख़त्म हो गया था, कोई इग्निशन नहीं था, तो इतनी देर के अंदर तो आपका मिसाइल सिस्टम नीचे आके अर्थ के ऊपर ही लैंड या क्रैश कर जाएगा। तो ये 5 सेकंड का डिले भी हम एडजस्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इन दीज टाइप ऑफ कंडीशंस वी यूज़ हार्ड रियल टाइम operating system. I hope these topics are clear. So let's see you in the next lecture. If you have any doubt, you can comment down and kindly share, subscribe this channel.